Yes, good evening. All right. Yes, good evening. Okay, so just let me open the Bear Act. Just a second. Huh? Just let me open the Bear Act. Meanwhile, if you have any query with respect to previous class, then do let me know. All right. Yes. So I hope the screen is visible. Yes or no? All right, great. Okay. So, hmm. So see, in our previous class, we have just covered the basics to Contract Act, right? Like what are the important definitions, right? Apart from that, what are proposal, what is acceptance, what is consideration, right? And then how the agreement has been formed, which agreements become valid contract, right? What are the conditions, what are the grounds on the basis of which the agreement is converted into contract, right? And then we have gone through that what are the lawful object, yes, section 23, section 25. And then we had also covered void agreements, contingent contract. All right. So is anybody having any doubt with respect to contingent contract? Then do let me know right away. Yes. Any doubt with respect to contingent contract? No? All right. Okay. So now what we are left with really very important sections. All right. So instead of picking from section 37, I would like to start from section 56. Okay. And we will have a comparative study between section 56 and section 32. Okay. All right. So, dear students, let me know what is section 56. Yes. What is section 56? Anyone? Section 56? Frustration of contract? Yes. Right? Let us just go through it. Agreement to do an impossible act. Just a minute. Okay. Agreement to do an impossible act. An agreement to do an act impossible in itself is void. ठीक है? ये first para कहता है आपको कि that an agreement to do an act impossible in itself is void. ठीक है? Second para is contract to do an act afterwards becoming impossible or unlawful. A contract to do an act which after the contract is made becomes impossible
or by reason of some event which the promiser couldn't prevent, unlawful, becomes void. ठीक है? What does it become? It becomes void. All right, it becomes void. ठीक है? So in both the sentences, in both the paras, we can see one common term. Can you point it out? That what is that common thing between these two paras? Anyone? What is the common term? Impossible. Acha. Okay, apart from void also, it's impossible. Okay, it's impossible. Now, clearly oversee here. Okay. First para is saying that an act to do an act impossible in itself is void. Okay. So actually, it is talking about initial impossibility. Okay. It is talking about what? It is talking about initial impossibility. Section 56 is about the impossible act. ठीक है? जो सेक्शन 56 है आपका वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक है आपका इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और ये जो आपका सेकंड पैरा है दिस इज अबाउट द सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. ठीक है? मैं यहाँ पे पूरा नहीं ड्रॉ कर सकती हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने. ठीक है? Subsequent impossibility. Section 56, what does it talk about? It talks about agreement to do an impossible act, जिसको आप लोग फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं, एंड काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ठीक है? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. एंड सेम इज विद द क्लैट पीजी एग्जाम ऑल्सो. ये और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये आया भी है. So you can understand the gravity of this very section. ठीक है? So section 56 basically talks about the impossible act. And that impossible act, और देखो यहाँ पे 3 पैराज है. फर्स्ट पैरा इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, जो कि जो पर्टिकुलर एक्ट है वो ऑलरेडी इम्पॉसिबल है, उसका कोई स्कोप नहीं है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो. ठीक है? एंड दैट इज व्हाई we are giving it we are giving it name as initial impossibility. लेकिन जो आपका सेकेंड पैरा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, यहाँ पे आपने जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था सारी चीजें सही थी, लेकिन सम इवेंट हैज हैपेंड, कुछ ऐसा बीच में हो गया जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं एग्जीक्यूट करना, इट हैज कंप्लीटली बिकम इम्पॉसिबल या अनलॉफुल. अब आप उस एक्ट को आप नहीं कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है? ये हो गया आपका सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. सो सेक्शन 56 हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी. वन इज इनिशियल, जो कि आप आपका जो एक्ट है वो ऑलरेडी इम्पॉसिबल है. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका इलस्ट्रेशन ए में दिया है, विच इज A agrees with B to discover treasure by magic. The agreement is void. आप मैजिक से ट्रेजर नहीं क्रिएट कर सकते हो. ठीक है? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी. तो ये तो वैसे भी void हो जाना है. ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल. सो व्हेन द पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीजें सही थी, वो एक्ट भी सही था, एवरीथिंग वाज फाइन, बट सम इवेंट हैज अकर्ड. मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, ठीक है, या वॉर हो गया, या कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो गया, तो फिर आप उस पर्टिकुलर एक्ट को नहीं कंडक्ट कर सकते हो आगे. ठीक है? ये आपका सेकेंड पैरा कहना. This comes under the category of subsequent impossibility. Is it clear? So, your very act is becoming impossible or unlawful. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, लाइक मैंने आप लोग को क्लास में एक बताया भी था एग्जाम्पल, कि मान लो कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि चलो हम लोग पैरासीटामोल बेचेंगे. ठीक है? वी हैव डेल्ट कि ठीक है चलो इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग पैरासीटामोल बेचेंगे.
सारी चीजें सही थी, सब चीज सही था। क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सप्लाई करना, एवरीथिंग वाज वैलिड, एवरीथिंग वाज लॉफुल एट द टाइम वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। बट 4 दिन के बाद गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ जाता है कि इट हैज बेसिकली इम्पोज्ड अ बैन on the supply, distribution, whatever, the manufacturing of uh, this paracetamol. ठीक है, पैरासीटामोल अब बैन हो गया, ऐसी न्यूज आई। अब क्या होगा, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा कि वैलिड होगा, बताओ। व्हाट विल हैपन टू आवर कॉन्ट्रैक्ट? Ma'am, यस, what were the initial facts? Could you please repeat it again? I listened to the fact that the government released out a notification by which it is banning paracetamol. What were the earlier facts? Can you please repeat? so for example, I and you have entered into a contract, okay, that we are going to trade, we are going to run a business on paracetamol. ठीक है, paracetamol is a medicine. ठीक है, but later on what happened, after 4 days, government has come up with a notification that from now onwards, the trading, the manufacture, the supply, distribution with respect to the paracetamol is banned now, is illegal now. Now I am asking that what will be the situation? Okay, what will be the situation, or what will happen to our contract now? Okay, so over here, the contract between us, I think, is becoming unlawful because the government has banned it. So it will be void. Yes. Okay. Archana is saying initial impossibility. No, it will not come under initial impossibility. See, the when we have entered into a contract, everything was completely valid. Okay, there wasn't any kind of ban over the paracetamol. But later on, when we have entered into a contract, after 4 days, government has come up with a notification. Now the paracetamol is banned now. So this will come under the example of what? Under the subsequent impossibility. All right. I hope it is clear. Chalo. So we have got initial impossibility and subsequent impossibility. ठीक है? In both the cases, the contract will become void. Right? Now, let's come to the third para, which is compensation for loss through non-performance of fact known to be impossible or unlawful. What does it mean? Where one person has promised to do something which he knew or with a reasonable diligence might have known, and which the promisee didn't know to be impossible or unlawful, such promiser, let me just underline it, such promiser must make compensation to such promisee or any loss which such promisee sustains to the non-performance of the promise. Very simple. थर्ड पैरा है, बहुत सिंपल है, ये कंपेंसेशन की बात कर रहा है कि प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते टाइम अगर प्रॉमिसर को जरा सा भी हिंट था या रीजनेबल डिलिजेंस के थ्रू अगर उसको पता चल जाता कि दैट पर्टिकुलर एक्ट इज गोइंग टू बी अनलॉफुल और इम्पॉसिबल, then in that case the promisor will be liable if any kind of loss is sustained by whom? By the promisee. ठीक है, so let us take the same example paracetamol वाला। अगर मान लो कि I and you, ठीक है, we both have entered into a contract, ठीक है, for example अर्चना के साथ I have got this contract कि चलो let's do trading on the this paracetamol, ठीक है, alright, सब चीज सही था, सारी चीजें सही थी, सब वैलिड था, बट मुझे एक मान लो इनसाइडर टाइप की इंफॉर्मेशन थी कि हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मेरा कोई फ्रेंड था, तो उसने मुझे पहले से हिंट दिया था कि हो सकता है पैरासीटामोल को लेके गवर्नमेंट कुछ अपना नोटिफिकेशन लाए, ठीक है, हो सकता है बैन हो जाए, इस टाइप का मेरे पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन था, बट स्टिल आई हैव एग्जीक्यूटेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अर्चना। सो इन दैट केस अगर मान लो आपका क्या कहते हैं बाद में अगर आपका एक्ट इम्पॉसिबल अनलॉफुल हो गया बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, एंड इफ देर इज एनी लॉस विच इज सस्टेन्ड बाय अर्चना, हु विल बी लाइबल? आई विल बी लाइबल। ठीक है, आप जानबूझ के किसी को धक्का दोगे तो किसकी गलती है, कौन कंपेंसेट करेगा? आप कंपेंसेट करोगे। ठीक है, आपको पता है कि सामने वाले को खतरा है,
फिर भी आप उसको बुला के आके कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवा रहे हो, तो obviously who will be responsible? The promisor will be responsible. He is supposed to pay the compensation, as simple as that, according to para 3. ठीक है, तो दिस इज योर सेक्शन 56. पैरा 1 बात करता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की, कि आपका जो पर्टिकुलर एक्ट है वो कंप्लीटली क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल है, आप उसको कर ही नहीं सकते हो. ठीक है. सेकेंड है आपका सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, विच मीन्स कि वंस यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वंस द पार्टीज वर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीजें सही थी, सारी चीजें चंगी थी, लेकिन बाद में ऐसा कुछ हो गया. ठीक है, हालात पलट गए. ठीक है, so because of that the contract has become unlawful or impossible, and this is known as subsequent impossibility. ठीक है, so under section 56 we have got 3 paras: initial, subsequent, and last one is your compensation. ठीक है, अब कुछ इंग्लिश केस. In third paragraph, if in case the promisee would have been wrong, तो यहाँ पे तो section 56 के अंडर तो उसके ऊपर कोई liability नहीं आता ना, मतलब as in contract का जो भी compensation वगैरह होता वो उनको actually नहीं करना पड़ता ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ promiser की बात हो रही है, right? promisor, yeah, Okay. yes. क्योंकि promisor के कहने पे ही तो promise ही करेगा, कंसिडरेशन भी तो प्रोमिसर के ही डिजायर पे पास होता है. दैट इज वाई प्रोमिसी का एंगल नहीं दिया है यहाँ पे, सिर्फ प्रोमिसर का दिया है. राइट, ओके. चलो, कुछ केसेस है, इंग्लिश केसेस है, लीडिंग केसेस है. राइट, लेट मी जस्ट शो यू. देखो, एक है आपका है पैराडाइम वर्सेस जेन. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मेरे को एक बार व्हाइट बोर्ड खोल लेने दो. So the first English case with respect to frustration of contract is Paradigm versus Jane. ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. दिस इज अ फर्स्ट केस, आप ये ध्यान रखिएगा. इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई सब्सिक्वेंट हैपनिंग हो रही है, ठीक है, आई मीन दिस केस इज बेसिकली रिलेटेड टू दी फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला केस है, लेकिन यहाँ पे ये कोर्ट ने कह दिया था कि जो सब्सिक्वेंट हैपनिंग है उसकी वजह से जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए. इट शुडंट इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट विच इज बीन ऑलरेडी मेड. तो ये नहीं कह रहा है यहाँ पे कोर्ट, जैसे कि हम लोग तो बात कर रहे हैं कि अगर कोई सब्सिक्वेंट हैपनिंग हो रही है, ठीक है, if any subsequent happening, I mean if there is subsequent event is happening and because of that particular event the act has become unlawful or impossible, so because of that reason you won't be able to execute your contract and hence the contract will become void. बट ये जो पहला केस आया था इंग्लिश केस पैराडाइम वर्सेस डी, यहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि कोई बात नहीं, सब्सिक्वेंट हैपनिंग हो रही है, सो दैट शुडंट अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बीन ऑलरेडी मेड. ठीक है, बस आपको इतना ध्यान देना है. नेक्स्ट केस इसके बाद आया था टेलर वर्सेस कैल्डवेल. ठीक है, टेलर वर्सेस कैल्डवेल, ये आई मस्ट से जो मैं ये केसेस बता रही हूँ ना, ये जस्ट एज अ जीके की टाइप याद रख लो, ये ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. But still, since section 56 is important, everything becomes important around it. Okay, जो फाइन, ये जो आपका टेलर वर्सेस कैल्डवेल है, ये जो आपका केस है, ये म्यूजिक हॉल वाला केस था. इसका फैक्ट था कि म्यूजिक हॉल जल गया था, तो अब तो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं बचा, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे करोगे. सो व्हाट हैपेंड इन दिस, तो बेसिकली कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि दैट दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज पॉजिटिव एंड एब्सोल्यूट एंड नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. तो यहाँ पे जो पैराडाइम वर्सेस जेन में जो बोला गया था कि जो सब्सिक्वेंट हैपनिंग होगी दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये टेलर वर्सेस कैल्डवेल में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया. उसने कहा कि जो सब्सिक्वेंट हैपनिंग होगी दैट इज ओनली गोइंग टू बी अप्लाइड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज पॉजिटिव एंड एब्सोल्यूट. ठीक है, और बेसिकली जो आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि देखिए टेलर वर्सेस कैल्डवेल में क्या हुआ था कि जो म्यूजिक हॉल था वो बर्न हो गया था, ठीक है, जल के खत्म हो गया था, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे एग्जीक्यूट करोगे.
ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्सिक्वेंट हैपनिंग है वो इस केस में देखो क्या कहते हैं, कोर्ट ने कहा था कि द कॉन्ट्रैक्ट शुडेंट बी सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन अगर सब्सिक्वेंट हैपनिंग को इफेक्ट नहीं करना है तो। खैर आप उस डिटेल्स में मत जाइए, आप सिर्फ नाम याद रखने की कोशिश करिए कि दिस पैराडाइम वर्सेस जेन नाम का भी एक केस था विच वाज द फर्स्ट केस विद रिस्पेक्ट टू द दिस इम्पॉसिबिलिटी वाला थिंग। एंड फिर इसके बाद टेलर वर्सेस कैल्डवेल आया। एंड लास्ट में जो है ये आपका एक और इम्पोर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, सो दैट इज व्हाई आई एम मेंशनिंग इट ओवर हियर। क्रेल वर्सेस हेनरी, क्रेल वर्सेस हेनरी। तो यहाँ पे ये बोला गया था कि जो फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, जो फ्रस्ट्रेशन है इट अप्लाइज नॉट ओनली, आई मीन इट अप्लाइज टू टू सिचुएशंस, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट फेल्स, when the object fails and when the matter is physically cut off। मतलब जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वही खत्म हो गया है, ठीक है। ये फिजिकली कट ऑफ वाला आपका टेलर वर्सेस कैल्डवेल में भी था, पर ठीक है इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। टेलर वर्सेस हैंनरी ये फिजिकली कट ऑफ आपका हो गया है तो ठीक है। सो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज अप्लाई व्हेन देयर आर टू सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू द क्रेल वर्सेस हेनरी। और यही चीज आपकी इंडियन जो लीडिंग जजमेंट है विच इज, कैन एनीवन मेंशन दैट व्हाट इज दैट इंडियन केस जो लीडिंग जजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 56? एनीवन? सत्यव्रता घोष वर्सेस मांगनीराम बांगर। यस, सो यही दोनों पॉइंट को लेके वहां पे एग्जीक्यूट किया गया था, ठीक है। कि जो इम्पॉसिबिलिटी डजंट मीन दैट इट ओनली द इम्पॉसिबिलिटी डज ओनली अप्लाई व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज फिजिकली कट ऑफ। जब ऑब्जेक्ट फेल होता है तब भी आपका अप्लाई होता है। कैसे होता है मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। ये आप प्लीज केस का नाम नोट कर लीजिए, ये आपको पता भी होगा, आपने सुना भी होगा, सत्यव्रता घोष, ठीक है, सत्यव्रता घोष। इसका आप लोग फैक्ट्स देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। फैक्ट्स करेंगे तो फिर बाकी चीजें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मंगनी राम बांगर, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ। तो इस केस में बेसिकली बोला गया था कि जो आपका इम्पॉसिबिलिटी है इट इज गोइंग टू अप्लाई इन टू सिचुएशंस, वन व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज फिजिकली कट ऑफ, ठीक है, एंड सेकंड इज व्हेन द ऑब्जेक्ट फेल्स। Subject matter is physically cut off, it means that the subject matter doesn't exist, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ही आपका डिस्ट्रॉय हो गया है, राइट। देन इट इज नोन एज फिजिकली कट ऑफ या फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, यू कैन ऑल्सो टर्म इट एज लाइक दैट। सेकेंड है आपका ऑब्जेक्ट फेल हो गया। ऑब्जेक्ट फेल होने का मतलब ये है कि फिजिकली तो आप उसको कर सकते थे, सब्जेक्ट मैटर तो था, ठीक है, एग्जिस्टेंस में था, लेकिन अब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना इज नॉट लॉजिकल एट ऑल। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू पीपल आर गोइंग टू अटेम्प्ट फॉर क्लैट पीजी एग्जाम, ठीक है, ऑल राइट। तो मैंने ये कहा आपसे, राइट, कि ओके, सो मैंने ये कहा आपसे कि अगर आप अपना क्लैट पीजी एग्जाम दे लेते हो, देन आफ्टर योर क्लैट पीजी एग्जाम व्हाट आई विल डू, आई विल थ्रो अ पार्टी फॉर यू, ठीक है। आपने कहा ओके मैम, ठीक है, वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि वंस यू हैव क्वालिफाइड क्लैट पीजी एग्जाम व्हाट विल हैपन, आई विल थ्रो अ पार्टी फॉर यू। हमने आज कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, आज है 8th ऑफ नवंबर। 12th ऑफ नवंबर को आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है दैट क्लैट पीजी एग्जाम इज बी पोस्टपोन्ड या कैंसल्ड, नॉट पोस्टपोन्ड, कैंसल्ड। योर क्लैट पीजी एग्जाम इज बीन कैंसल्ड, this kind of notification has come up on 12th of November, okay। अब you people tell that whether our contract has become impossible or not। क्या हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया है? आपका क्लैट पीजी एग्जाम अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या मैं पार्टी दूंगी आप लोगों को? यस,
एग्जाम्पल सबको समझ में आया? यस और नो? यस, यस। Should I repeat my example? It is impossible, yes. जब क्लैट पीजी का एग्जाम ही नहीं होगा, कैंसिल ही हो गया, तो मैं आपको पार्टी किस बात का दूं? ठीक है, इट हैज बिकम इम्पॉसिबल। और ये इम्पॉसिबल किसकी वजह से हुआ है? बिकॉज दी सब्जेक्ट मैटर इज बीन फिजिकली कट ऑफ। आप कैरी आउट ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम ही कैंसिल हो गया है, खत्म। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से सुनिए। सो वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्लैट पीजी का एग्जाम क्यों दे रहे हो? व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लैट पीजी? लेट मी नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लैट पीजी। आप क्लैट पीजी का एग्जाम देके आप क्या करोगे आगे? व्हाट इज योर प्लान? Either become an academician or would go for the PSUs. ओके, ओके, ओके। So obviously you will be an academician once you get admission for LLM. ठीक है? Right. So there are two purposes for CLAT PG: to get admission in LLM and PSU recruitment. ठीक? Yes. So today is your 8th of November. On 12th of November, there is a notification from NLU Consortium that for getting admission in LLM or for getting recruitment in PSU, CLAT PG is not eligible from now onwards. क्लैट पीजी का जो एग्जाम है, अब उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी फॉर एलएलएम एडमिशन इन एनएलयूज एंड फॉर पीएसयू रिक्रूटमेंट। अब आप ये बताइए, आप क्लैट पीजी एग्जाम दोगे फिर आफ्टर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन? आप फॉर्म भरोगे फिर क्लैट पीजी का? यस। आर यू गोइंग टू फिल अप द फॉर्म फॉर क्लैट पीजी? नो। जब पर्पस ही खत्म हो गया तो फॉर्म भर के आप क्या कर लोगे? तो ये आपका एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट फेल का। तो देखो, क्लैट पीजी एग्जाम हो रहा है, आप जाके उसको दे सकते हो एग्जाम को, बट द वेरी ऑब्जेक्ट फॉर गेटिंग रिक्रूटेड इन पीएसयू और फॉर एलएलएम एडमिशन, इट इज बीइंग फेल्ड नाउ। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। तो इम्पॉसिबिलिटी बेसिकली आपकी दो सिचुएशन में अराइज होती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट फेल्स, ठीक है, आप उसको फिजिकली कैरी आउट कर सकते थे लेकिन उसका ऑब्जेक्टिविटी फेल हो चुका है, उसको कैरी आउट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिजिकली कट ऑफ, जब सब्जेक्ट मैटर ही आपका डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, सो ये छोटी सी चीज है जो आपको थोड़ा ध्यान रखनी है सेक्शन 56 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, let me just share my screen. All right. Okay. Now, सत्यव्रता घोष बिल्कुल जरूर देख के जाना। Now, there are few grounds on the basis of which you can say कि हाँ, the contract has become frustrated. ठीक है, पहला तो आपका है when there is a destruction of subject matter. ठीक है, then है second है आपका change in circumstances. थर्ड है आपका non occurrence of contemplated event, डेथ या इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी, या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ रहा है, वॉर हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपका इम्पॉसिबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑल इन ऑल दीज सिचुएशंस योर कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम टू बी फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, सेक्शन 56 इज गोइंग टू अप्लाई। कॉमर्शियल हार्डशिप है, सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 56 इज नॉट गोइंग टू अप्लाई। ठीक है, कॉमर्शियल हार्डशिप, पैसे नहीं है, पैसे की कमी है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू फ्रस्ट्रेट योर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो दिस थिंग इज बीइंग कवर्ड अंडर सेक्शन 56। अच्छा बेटा, एक टर्म होता है, मेरे को ऐसे रैंडमली याद आ गया, पैरिडेलिक्टो। इसका मतलब पता है क्या होता है? पैरिडेलिक्टो का मतलब होता है पार्टीज इन इक्वल फॉल्ट। ठीक है, तो मेरे को ऐसे मैक्सिमम याद आ गया, ये सेक्शन 65 जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे एक है छोटा सा कंसेप्ट, पैरिडेलिक्टो।
चलो ठीक है, ये तो हुआ आपका सेक्शन 56। अच्छा, नाउ Ma'am, could you please repeat this peri delicto? Parties in equal fault. fault. Okay. Acha, can anyone point out that is there any difference between section 32 and section 56? कोई difference है दोनों में? Contingent contract और frustration of contract में वहां पे impossible की बात करता है, वहां भी contract हम लोग का void हो जा रहा है, यहाँ भी contract void हो जा रहा है. Is there any difference between them? Yes. Is there any difference between them? Yes. What is that? 32 is a conditional contract. Okay. Section 56 is absolute contract. देखो शॉर्ट में बता रही हूँ, सेक्शन 32 या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है कि द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन सम फ्यूचर इवेंट. वो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड होता है आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और जो फ्यूचर इवेंट है दैट इज बीन प्री डिटरमिन्ड बाय द पार्टीज. वो होना है नहीं होना है दैट इज बीन ऑलरेडी डिटरमिन्ड बाय द पार्टीज. ठीक है. बट सेक्शन 56 में ऐसा नहीं है. पार्टीज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर दी इवेंट्स जो भी हो रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे पार्टीज ऑलरेडी डिसाइड नहीं कर रही होती हैं कि अगर इवेंट होगा तब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. उनका कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, बीच में सारी चीजें सही चल रही थी लेकिन ऐसा कुछ इवेंट हो गया, मान लो वॉर हो गया, अभी अर्थक्वेक भी आया था कुछ दिन पहले, मान लो नेचुरल कैलामिटी आ गई, तब तो ऐसे सिचुएशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा फ्रस्ट्रेटेड. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें डिफाइंड रहती हैं, सारी चीजें प्री डिटरमिन्ड रहती हैं, सारी चीजें प्लान्ड रहती हैं कि भाई ऐसा अगर फ्यूचर इवेंट हुआ तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट अपना एग्जीक्यूट करूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म माई पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, दैट्स इट, द स्टोरी इज एंड. बट सेक्शन 56 में इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट इट इज बीइंग फ्रस्ट्रेटेड बाय सम ऑफ बाय सम सुपरवीनिंग इवेंट जिसको आपने कंटेम्पलेट नहीं किया है. ठीक है, अचानक से वो इवेंट हो गया है. ठीक. सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 32 एंड सेक्शन 56. नाउ लेट अस जस्ट कम टू सेक्शन 65. एक सेकेंड. Section 56 of it has, you can read with section 65. 65 देखो इसकी बात करता है, restitution की बात करता है. ठीक है. और क्वांटम मेरिट के बारे में बात करता है. इट मींस कि अगर मान लो कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में या वॉइड अग्रीमेंट में, नॉट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सॉरी, वॉइड अग्रीमेंट में या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में विच हैज बिकम वॉइड, ऐसे केस में अगर दूसरे पार्टी को कोई बेनिफिट मिल गया है, कोई एडवांटेज मिल गया है, तो वो उसको रीस्टोर कर देगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई एंड यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वी आर गोइंग टू ट्रेड, वी आर गोइंग टू रन अ बिजनेस ऑन पैरासीटामोल, और जिसकी वजह से मैंने आपको कुछ एडवांस पेमेंट कर दिया, लेकिन बाद में जाके हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, तो आप मुझे पैसे वापस कर दोगे, अपने पास नहीं रखोगे. ठीक है. तो यही आपका सेक्शन 65 कहता है कि दैट एन ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज ओवर वॉइड अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज बिकम वॉइड. तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो तो हम लोग का ये सेकंड वाले पार्ट का एग्जाम्पल है, दैट द कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज बिकम वॉइड. ठीक है. वॉइड अग्रीमेंट आपको भी पता है विच इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ एट ऑल. ठीक है. सो अगर ऐसे केस में जैसे आप माइनर के साथ एक्ट सॉरी ये कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट एंटर कर रहे हो, तो उस केस में भी अगर सॉरी यस या वॉइड अग्रीमेंट या माइनर का कुछ आपने बेनिफिट, देखो माइनर माइनर अगर कुछ बेनिफिट लेके बैठा है तो ऑब्वियसली इट कांट बी रीस्टोर्ड. ठीक है. लेकिन अगर माइनर का अगर आप कुछ बेनिफिट लेके बैठे हो तो वो आपको रीस्टोर करना होगा. या आप अग्रीमेंट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू, ये आपका जो नहीं सेक्शन 26 से स्टार्ट है, जैसे ये आपका अग्रीमेंट अगेंस्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगेंस्ट मैरिज, ये सारी चीजें, तो ऐसे केस में आपको रीस्टोर करनी होगी चीजें. ठीक है. अब आते हैं, ये हो गया आपका सेक्शन 65.
राइट। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है। ऑल राइट, चलो ये तो हो गया आपका सेक्शन 32 हो गया, मतलब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंड सेक्शन 56 हो गया। आई होप 56 इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है ना? जस्ट अ मोमेंट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज कंफर्म। Where it is. Just a minute. Okay. Yes. Yes, yes. As it is being written, the language of section 56 para 3, the promiser, if he was able to take some reasonable decision or reasonable diligence, but he didn't took it, okay, then he is, uh, yeah, then he is supposed to compensate the promisee. Okay, just a minute. Chalo. Now, discharge of contract. We have seen what we have read so far, that how contract has been entered. कॉन्ट्रैक्ट कैसे एंटर किया जाता है, क्या वैलिड कंडीशंस होती है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आप चार तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ईदर बाय परफॉर्मेंस, आप परफॉर्म कर लो चुपचाप जो भी आपने ऑब्लिगेशन है आपकी। ठीक है, सेकेंड है आपका कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रस्ट्रेट हो गया, जो कि अभी जस्ट हमने पढ़ा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट गॉट फ्रस्ट्रेटेड। नेक्स्ट टाइप का होता है आपका अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब आपने जो पुराना अग्रीमेंट था, या आप सॉरी जो आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, आपने कुछ उसके टर्म वेरिएट किए हैं या कुछ पार्टीज वगैरह चेंज की है, तो आप अग्रीमेंट, नया अग्रीमेंट बना के भी आप पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को आप खत्म कर सकते हैं। ठीक। एंड द लास्ट वन इज ब्रीच, या तो आप ब्रीच कर दो। ठीक है, तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज। परफॉर्मेंस आपका फ्रॉम सेक्शन 31 से 67 तक है शायद। फ्रस्ट्रेटेड आपका सेक्शन 56 बात करता है। अग्रीमेंट नोवेशन की बात करता है। ठीक है, ये जो आपका सेक्शन 62 में दिया गया है। एंड ब्रीच आपका सेक्शन 73 से लेके 75 तक दिया है। 73 से लेके 75 तक सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीच, फ्रस्ट्रेटेड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाउ योर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज, इट कैन बी डिस्चार्ज थ्रू ईदर ऑफ वेज ना। देखो, अब देखो यहाँ पे हम लोग फ्रस्ट्रेटेड कर चुके हैं, सेक्शन 56 हो चुका है हम लोग का। आप लोग जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, ठीक है, तो पार्टीज ने जो प्रॉमिस किया है वो आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे परफॉर्मेंस में देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। जस्ट गिव मी अ मिनट। या, ठीक है, अब देखो हम लोग परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। वेयर इट इज, सेक्शन 37 से स्टार्ट है, मतलब 31 से स्टार्ट है। 31 से आप लोग, हम लोग कंटिंजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब 37 से स्टार्ट करते हैं। 37 टॉक्स अबाउट ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने जो प्रॉमिस किया है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा।
until unless you are excused by any other law or any other provisions of this act. ठीक है. So section 37 बात करता है obligation of parties to the contract. इसका आप एक बार illustration देख लीजिएगा. 38 उतना important नहीं है, ठीक है. So I am skipping it for as of now. ठीक है, इतना important नहीं है. सेक्शन 39 की बात करते हैं. सेक्शन 39 एंटिसिपेटरी ब्रीच के बारे में बात करता है. किसकी बात करता है? एंटिसिपेटरी ब्रीच के बारे में बात करता है. एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल? यस, एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब परफॉर्मेंस होने से पहले ही पार्टी ने ब्रीच कर दिया. ठीक है. द बेस्ट एग्जांपल इज बीन गिवन ओवर हियर. अच्छा, अगर इस केस में मान लो ब्रीच हो भी रहा है बिफोर द ड्यू डेट, ठीक है, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस, देन व्हाट विल हैपन? द promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance. तो promisee, देखो मान लो अगर promiser ने, ठीक है, जो भी promise किया था, if he is not executing the promise, then what will happen? क्या होगा? राइट. तो प्रॉमिसी या तो एंड कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा, बोलेगा जाओ यहाँ से, मेरे को अब नहीं करना है तुम्हारे साथ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंप्लीट करूंगा, आप जाओ. या तो सिग्निफिकेंट आई मीन सिग्निफाई कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपसे फॉल्ट हो गई है, हम लोग आपस में बाद में बात कर लेंगे कंपेंसेशन के बारे में, बट आप जो भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई कोई बात नहीं, लेकिन आप एज इट इज अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करिए. एंड ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा अगर आप इलस्ट्रेशन इसका पढ़ेंगे तो. ठीक है. ये मैनेजर और सिंगर वाला एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे जो एक सिंगर थी वो एक दिन नहीं आती, एब्सेंट हो जाती है, तो फिर मैनेजर इस केस में क्या कर सकता है? या तो ही इज गोइंग टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट, या तो वो क्या कहते हैं उसको अलाउ करेगा कि कोई बात नहीं, सिक लाइक एक दिन नहीं आई, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करो. सो कुछ भी डैमेज वगैरह होगा वो बाद में वो लोग सेटल कर लेंगे. राइट. सो दीज आर द टू ऑप्शंस व्हिच इज गिवन इन केस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच. ठीक है. तो ये आपका सेक्शन 39 है. और कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपको बताती हूँ जो कि आ सकता है. यहाँ पे बहुत वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर पढ़ाने चलो तो बहुत कुछ हो जाएगा. एक आपका सेक्शन 59 से, वेयर इट इज, सेक्शन 56 इज डन. सेक्शन 59 बात करता है आपकी एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के बारे में बात करता है. 59, 60 एंड 61 तीन सेक्शंस है. ठीक है. एंड इसमें एक केस भी था, क्लेटन केस था, जिसको क्लेटन रूल भी बोला जाता है. तो कुछ नहीं है इसमें. देखो सेक्शन, ये जो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट है ये तभी अराइज होता है ऐसी सिचुएशन में जहां पे एक डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है. लेट मी जस्ट शो यू द डिस्प्ले. एक डेटर है जिसके पास मल्टीपल डेट्स हैं, ठीक है, डेट 1, डेट 2 और डेट 3, और उसने एक क्रेडिटर से ये ले रखे हैं पैसे. तो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट आपको यही डायरेक्ट करता है. सेक्शन 59 अगर ये कहता है कि कैसे अप्रोप्रिएट होगा पेमेंट का. ठीक है. मान लो डेट 1 था वाज 10,000, डेट 2 था 20,000. हाँ, इतने पैसे इसने क्रेडिटर से लिए हैं, और ये था 30,000. ठीक है, 30K, सॉरी. टोटल इसके पास कितना डेट हुआ? 60,000 हुआ. ठीक है. लेकिन इसके पास देने को खाली कितना था? 50,000 था. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये थोड़ा सा ना डायग्राम इधर उधर हो रहा है, राइट. लेकिन इसके पास देने के लिए सिर्फ 50,000 था. अब यहाँ पे क्रेडिटर को ये कैसे बताएगा कि जो 50,000 है आपको उसको डेट 1 के अगेंस्ट खाली सेट ऑफ करना है, कि डेट 2 के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है, कि डेट 3 के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है, या कौन सा कॉम्बिनेशन का डेट होगा जिसपे कि आप 50,000 सेट ऑफ कर सकते हो. अगर डेटर अपनी तरफ से बता रहा है क्रेडिटर को कि आप जो 50,000 है वो डेट 2 और डेट 3 के लिए आप यूज कर लो, डेट 1 का जाने तो मुझे माफ करो, तो फिर आपका सेक्शन 59 होगा. ठीक है, जहां पे डेटर ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है.
सेक्शन 60 आप देखोगे तो वहां पे क्रेडिटर इंडिकेट करता है कि हाँ, मैं जो 50,000 आप मुझे दे रहे हो मैं डेट 1 और डेट 2 के लिए यूज कर लूंगा, ठीक है। और डेट जो सेक्शन 61 है वो उस केस में अप्लाई होगा जहां पे दोनों ही पार्टीज ने इंडिकेट नहीं किया है, ठीक है। मान लो डेटर और क्रेडिटर दोनों ने नहीं बताया है तो फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला या फीफो मेथड लगेगा, ठीक है। तो डेट 1 डेट 2 ऐसे आपके असेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा, और ऐसे कुछ खास सेक्शन नहीं है, ये उतना कभी पूछा भी नहीं है, बट ठीक है स्टिल 59 60 एंड 61 ये ठीक है क्लेटन रूल वाला है। अब आते हैं सेक्शन 62 पे। And 59 is Clayton rule, right? क्लेटन रूल इज बेसिकली, देखो ये केस लॉ से आया था, Okay. वो क्लेटन करके केस ही था उसका, राइट। तो ये केस से आया था, ठीक है। अगर वहां पे ये था कि अगर डेटर ने वन टाइम सेटलमेंट कर दिया है, ठीक है, तो क्रेडिटर बार बार आके उससे ये नहीं पूछेगा कि आप वापस से कब सेटल करो, ठीक है। एक बार फैक्ट्स आप जाके देख लेना, वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लस उसमें ये था कि अगर इंडिकेशन नहीं दिया जा रहा है तो फीफो मेथड अप्लाई होगा, दैट्स इट, Okay. ठीक है। चलो सेक्शन 62 आते हैं। सेक्शन 62 इज वन ऑफ द अदर मेथड टू डिस्चार्ज योर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट था आपका थ्रू अग्रीमेंट, ठीक है। तो अगर आप जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है अगर आप उसको सब्सटीट्यूट कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, देन 62 आप, देन अकॉर्डिंग टू 62 आप कर सकते हो। व्हाट इज दैट? Effect of novation, rescission, and alteration of contract. If the parties to a contract agree to substitute a new contract for it, or to rescind it, or to alter it, the original contract need not to be performed. So we have got three terms over here. Novation है, rescission है, and alteration of contract है। Novation आपका तब होता है जब आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कर देते हो विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। जो रिप्लेसमेंट होती है हो सकता है कि उसमें पार्टीज चेंज हो रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी चेंज हो रहा हो, ठीक है, तब आपका नोवेशन होगा। रेसिशन मतलब आप एंड कर रहे हो, जो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो आप खत्म कर रहे हो और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं बना रहे हो। ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि कुछ आप टर्म्स वगैरह आप खाली ऑल्टर कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो आप खाली टर्म्स इधर उधर कर रहे हो उसको खत्म नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 62 है, छोटा सा है, ठीक है, दैट्स इट। बस सेक्शन 62 तक बस आप ध्यान रखना। 62 में आपका नोवेशन आता है, ठीक है। 63 64 नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। 64 देखो जस्ट आपका इसी टाइप का है सेक्शन 65 की तरह। 65 इंपॉर्टेंट है आपका, रेस्टिट्यूशन, क्वांटम मेरिट, अगर ये सब बात करेगा तो ये आप सेक्शन 65 लगा देना। क्वांटम मेरिट आपका सेक्शन 70 में भी आएगा, अभी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपके कुछ सेलेक्टिव ही सेक्शंस मैंने बताए हैं आपको, सो दैट आप ज्यादा लाइक कम पढ़ के आप इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 5 पे, विच टॉक्स अबाउट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये आज तक पूछा नहीं गया है क्लैट पीजी में, लेकिन ये भी काफी एसेंशियल एस्पेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। एंड बहुत ही सिंपल है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल? यस, quasi contract basically depends upon the theory of unjust enrichment, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली पार्टीज एक्चुअल में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर कर रही हैं, बट ऐसा रिलेशनशिप बना हुआ है कि इट सीम्स दैट यस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लाइक देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको आज की डेट में अपना लैपटॉप देती हूँ सो दैट यू कैन कंप्लीट योर कॉलेज असाइनमेंट, ठीक है, आपके पास मान लो कॉन्ट्रैक्ट, अरे लैपटॉप खराब हो गया, तो मैं आपको जस्ट टू हेल्प यू आउट मैं आपको अपना आज की डेट में ये लैपटॉप दे देती हूँ सो दैट यू कैन कंप्लीट योर असाइनमेंट।
तो क्या वो लैपटॉप आप रख लोगे अपने पास या मुझे रिटर्न करोगे? व्हाट विल यू डू? क्या करोगे, रख लोगे? हाँ, After the assignment is complete, I would return it to you. ठीक है, ये थोड़ा बेलमेंट से भी आप एसोसिएट कर सकते हो। बट देखो, हमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर किया था कि मैं आपको आज के इस दिन मैं दे रही हूँ तो मेरे को 4 दिन बाद चाहिए, मुझे ऐसे ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं। सो जस्ट टू हेल्प यू आउट, आई हैव आस्क्ड यू, कोई बात नहीं, you can borrow my laptop and you can complete your assignment and once you are done आप मुझे रिटर्न कर देना। आप रिटर्न नहीं करोगे तो मैं आपसे कंपेंसेशन मांगूंगी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर 5 इज टॉक्स अबाउट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, उसमें बेसिकली ऐसा क्या कहते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, काइंड ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारी 5 सिचुएशन दी है जिसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कैटेगराइज किया जाता है। पहला देखिए, सेक्शन 68 है, विच इज क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। ठीक है, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, दैट ए सप्लाइज बी अ lunatic with necessary suitable to his condition in life, A is entitled to be reimbursed from B's property। ठीक है, आप मान लो किसी भी पर्सन, जैसे किसी माइनर पर्सन का या किसी ल्यूनेटिक पर्सन के अगर आप हेल्प कर रहे हो, आप उसको नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप बाद में जितना भी आपका खर्चा हो रहा है, यू कैन आस्क फॉर द रीइंबर्समेंट फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, सेक्शन 68 आपका ये कहता है। सेक्शन 69 आपका ये कहता है, रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ व्हिच ही इज इंटरेस्टेड। ठीक है, वेरी सिंपल, इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। देखो, बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए द जमींदार। तो ए नाम का बंदा था, वो जमींदार था और उसने बी को लीज पे अपनी प्रॉपर्टी दे रखी थी। तो बीइंग अ जमींदार उसको कुछ रेवेन्यू पे करना था, किसको, सरकार को, गवर्नमेंट को कुछ देना था, लेकिन उसने दिया नहीं। ठीक है, तो अब ये बताओ, नाउ द व्हाट गवर्नमेंट इज डिड, व्हाट गवर्नमेंट डिड, हिज लैंड इज एडवर्टाइज फॉर द सेल बाय द गवर्नमेंट। उसका जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुझे रेवेन्यू नहीं देना मत दे, मैं अब तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचूंगा। अब आप ये बताओ, ये जो बंदा है बी, जो लीज पे ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी लिया है, तो वो तो इंटरेस्टेड ही है भाई, उसका क्या कहते हैं, ठीक है जमींदार का है लेकिन उसने लीज के लिए पैसे दे रखे हैं बी ने, तो ऑब्वियसली ही इज इंटरेस्टेड इन दैट प्रॉपर्टी। तो जो रेवेन्यू, जो पेंडिंग रेवेन्यू है, वो बी दे देगा, दे सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ए। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो ऑब्वियसली बाद में बी जाके रीइंबर्समेंट ले लेगा ए से। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा कुछ ज्यादा इधर उधर हो गया। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं टेनेंट हूँ, ठीक है, किराएदार हूँ मैं, और मेरा जो लैंडलॉर्ड है उसने कुछ हाउस टैक्स पे नहीं किया। अब उसका हाउस टैक्स उसने पे नहीं किया तो उस पे कुछ कम सरकार कुछ वो पेनाल्टी वगैरह लगा रही है, वो कह रही है कि घर खाली करो। ठीक है, ये सब चीजें बोल रही है। तो मैं तो टेनेंट हूँ, मैं तुरंत कहाँ जाऊंगी? सो व्हाट आई डिड, मैंने कहा कोई बात नहीं, जो आपने टैक्स नहीं दिया है मैं टैक्स दे दे रही हूँ, आप बाद में मुझे रिटर्न कर देना। तो दो आई वॉज इंटरेस्टेड इन द पार्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी रह रही हूँ, मैं टेनेंट हूँ, लेकिन सो बट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, आई कैन आस्क फॉर द रीइंबर्समेंट, कोई बात नहीं, अब आपका सॉर्ट हो गया, अब चलो मेरे को वापस दे दो आप। दिस इज व्हाट योर सेक्शन 69 इज, जहां आप इंटरेस्टेड हो, दो यू आर नॉट बाउंड टू पे, कोई मेरे पर जबरदस्ती नहीं है, बट जस्ट टू हेल्प देम आउट, ठीक है, जस्ट टू हेल्प द लैंडलॉर्ड। ठीक है, मैंने उसके बिहाफ पे पेमेंट कर दी और मैं बाद में फिर उससे पैसे ले लूँ। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 69 कहता है। 70 है आपको, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूटस एक्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सिंपल है। A tradesman leaves good at B's house by mistake। मान लो आपके घर में आई थी और मेरा कुछ सामान छूट गया, तो क्या आप रख लोगे अपने पास? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ या ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ आपके पास, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई मेरा नॉन आई मीन कोई ग्रेटिट्यूडस एक्ट नहीं था मेरा। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू,
आप मुझे मेरा सामान आप रिटर्न कर दोगे, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सिंपल है? यस, यस। सिंपल नहीं है? ओके ओके ओके। 69 नहीं समझ में आया? देखो, फॉर एग्जाम्पल अर्चना, आप लैंडलॉर्ड हो और मैं हूं आपकी टेनेंट, ठीक है? मैं आपका, आपने एक छोटा सा कमरा दे रखा है मुझे, मैं उसमें रह रही हूँ, ठीक है? एक दिन क्या होता है कि आपके पास नोटिस आ जाता है, आपने हाउस टैक्स पे नहीं किया। अब आपके पास उस टाइम मान लो कैश नहीं रहता, तो आप मेरे पास आते हो, कहते हो कि मैं, मेरे पास कैश नहीं है, आप प्लीज ये पेमेंट कर दो वरना हो सकता है कुछ एक्शन ले ले सरकार हमारे घर पे। मैंने कहा ओके ओके, टेंशन मत लीजिए। व्हाट आई डिड, मैंने हाउस टैक्स पे कर दिया। अब आप बताओ, जो मैंने हाउस टैक्स पे किया है, घर किसका था? आपका था। हाउस टैक्स किस पे लगा था? आपके घर पे लगा था। पैसे किसको देने थे? आपको देने थे, लेकिन आपने नहीं दिया, मैंने दिया। तो मैं आपसे रीइंबर्समेंट लूंगी कि नहीं लूंगी? कि बैठ जाओगे आप, कोई बात नहीं, मेरा काम नहीं था? बताइए अर्चना। I'll come to that point, Disha, but please have this clarity over this example which I have just shared with you. समझ में आया अर्चना? The example which you have got, reimbursement should be done. So this is what your section 69 telling, कि reimbursement of person paying money due by another, आपकी तरफ से ड्यू था लेकिन आपने दिया नहीं, लेकिन जो पेमेंट आप कर रहे हो उसमें मेरा भी कुछ इंटरेस्ट था। क्यों? क्योंकि मैं बीइंग अ टेनेंट आपके घर में रह रही हूँ, ठीक है? तो इफ आई एम डूइंग द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ यू, देन आई डेफिनेटली आस्क फॉर द रीइंबर्समेंट, ठीक है? ये आपका सेक्शन 69 कह रहा है। दिशा, देखो दिशा, ये जो आप क्वांटम मेरिट की आप जो बात कर रहे हो, ऐसा कोई ऐसा डिफाइन नहीं है कि, मतलब देखो, क्वांटम मेरिट इज सिंपल अ डॉक्ट्रिन, कि आपने जो लिया है, ठीक है, आपने जो बेनिफिट लिया है, एडवांटेज लिया, आप उसको रीस्टोर कर दो। तो सेक्शन 65 भी आपकी ये बात करता है, और जो सेक्शन 70 है ये भी वही बात कर रहा है। सो इट डजेंट मीन कि क्वांटम मेरिट में आपके दो ही सेक्शन आएंगे, हो सकता है और भी हो, लेकिन फिलहाल अभी दो ही सेक्शन है, ठीक है? नॉट टू कंफ्यूज यू मोर। तो जो भी, अगर आप, तो जहां जहां आप एडवांटेज दूसरे का लेके बैठे हो, तो आपको उसको रिस्टोर करना होगा, उसी को आप क्वांटम मेरिट बोलते हो, ठीक है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? ऑलराइट। तो ये सेक्शन 70 हो गया, नॉन ग्रेटिचुअस। सेक्शन 71 पे आते हैं, विच टॉक्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। तो जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो देखिए आपका बेली से एसोसिएट होता है। बेली का क्या काम होता है? जो उसके पास सामान है उसका ख्याल रखना चाहिए, और फिर पर्पस खत्म हो जाए तो उसको वापस दे देना चाहिए, किसको? ओनर को या बेलर। तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड? अगर मान लो किसी का खोया हुआ सामान मिल गया है किसी बंदे को, ठीक है, फाइंडर को, वो क्या करेगा? वो रीजनेबल एक्शन लेगा, ठीक है, स्टेप्स लेगा, सो दैट द ट्रू ओनर कुड बी फाउंड आउट, ठीक है? अगर मुझे डायमंड रिंग मिल गई है रोड पे, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं उसको पहन के घूम रही हूँ, नहीं, आई विल फर्स्टली ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रू ओनर, ठीक है? वरना पता चला, ट्रू ओनर को पता चला कि मेरे पास, तो डेफिनेटली मेरे पे केस हो सकता है, ठीक है? सो ये क्या कहता है सेक्शन 71, दैट अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पांसिबिलिटी एज बेली। बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अपना सामान समझ के ना यूज करें। अगर मैं आपको अपना लैपटॉप दे रही हूँ असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, तो आप अपना समझ के नहीं काम करोगे, आप दूसरे का ख्याल रख के उसका काम करोगे और वापस करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे भी वो ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है? सेक्शन 72 क्या कहता है? हाँ, दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन दिशा। इट वाज मेरे दिमाग में क्लिक किया तो मैंने बता दिया, ठीक है? जैसे
कहीं देखा था मैंने ये क्वेश्चन, नॉट इन क्लैट पीजी, किसी और एग्जाम में देखा था। हाँ, यस प्लीज आस्क। ओके। हाँ हाँ, आप यही मार्क करके आ रहे हैं, ठीक है। क्लैट पीजी वैसे पूछेगा नहीं ये क्वेश्चन। हाँ, अब देखो डिपेंड्स ना कि क्या ऑप्शन में पूछता है, ठीक है। अब आप यही मार्क करके आना, ठीक है, दोनों बोलता है यही, राइट। इतना टेंशन मत लो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल आता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है जैसा आप सोच रहे हैं। चलो, सेक्शन 72, liability of person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion. So देखो, इलिस्ट्रेशन भी आप इसका देख सकते हो सेक्शन 72 का, वरना मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। ओके okay. जैसे कि फॉर एग्जांपल, राइट, मैं आपके घर आई, ठीक है, और अरे जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मान लो जोमेटो से ऑर्डर किया, ठीक है। आपने ऑर्डर किया, लेकिन जो डिलीवरी बॉय था वो आपके नेबर को देके चला गया, आपका घर समझ के। तो आपके नेबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं कि आपका खाना जो आपने ऑर्डर किया है वो आपको दे दे। यही आपका सेक्शन 72 है, ठीक है। That a liability of person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion, then section 72 is going to apply. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये भी होगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट देखो यहाँ पे जो सेक्शन 68 से लेके 72 तक है, द रिलेशनशिप्स between the parties are been established. Why it has been established? So that अगर एक बंदे को लॉस हो रहा है, अनजस्ट इनरिचमेंट हो रहा है, तो फिर जो दूसरा जो एडवांटेज, जिस पार्टी को एडवांटेज हो रहा है वो उसको रिस्टोर करेगा, ठीक है। अब आपका जो नेबर है जो आपको जोमेटो ऑर्डर लेके बैठा है, उसको भाई देखो वापस करना पड़ेगा आपको। समझ में आया? तो ये आपका सेक्शन 72 कहता है, ठीक है। चलो, इज इट क्लियर? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इज इट क्लियर? यस और नो? यस और नो एवरीवन? ओके ओके, ग्रेट। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पूछा भी था, ठीक है। चैप्टर 6 ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब एक बार वापस से हम लोग व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था आप लोगों को। आई होप एवरीवन कैन सी। 31 से 67 आपने देख लिया, ठीक है। कुछ ही सेलेक्टिव सेक्शंस आपको देखने हैं। फ्रस्ट्रेटेड भी आपने देख लिया। अग्रीमेंट सेक्शन 62 मैंने बताया, वो भी आपने देख लिया। अब हमारा लास्ट बचा है ब्रीच। ब्रीच से भी आपका डिस्चार्ज होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आपने जो अग्रीमेंट एंटर किया है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया उसको मत करो टाइम पे, ठीक है। बैठ जाओ, नहीं करूंगा, क्या कर लोगे, ठीक है। दैट इज नोन एज ब्रीच। जस्ट अ मिनट। ओके, चैप्टर 6, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो कि आपने प्रॉमिस किया है ऑपोजिट पार्टी से, ठीक है, और ऑपोजिट पार्टी आप काम नहीं कर रहा है आपका जो भी आपने कहा था, तो आप क्या करोगे? बैठे रहोगे? नहीं। क्या करोगे? उसको मारने जाओगे? नहीं। केस करोगे? कर सकते हो, केस चलता रहेगा। क्या करोगे? कंपनसेशन लोगे? बिल्कुल, कंपनसेशन ले लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये जो आपको जो सोल्यूशन बता रहा है कि इफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज देयर देन व्हाट इज द सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम आपका सोल्यूशन है फ्रॉम सेक्शन 73 से लेके 75, ठीक है। सेक्शन 73 कहता है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो डैमेज आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है,
डैमेज यहाँ पे बेसिकली ये आपको डिनोट कर रहा है कि आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ठीक है, इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 73 एक बार पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। दैट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, जस्ट अ मिनट, ओके, when a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach of which parties knew. ये बेसिकली आपके डायरेक्ट डैमेज की बात कर रहा है। डायरेक्ट डैमेज का मतलब अभी पता चलेगा, ये डायरेक्ट डैमेज की बात है। Such compensation is not to be given for any remote or indirect loss or damage sustained by reason of the breach. आप नॉर्मल जो आपका जो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आपका डैमेज हो रहा है तो उसके लिए आप कंपेंसेशन ले सकते हो सामने वाली पार्टी से। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेज है, कोई अनयूजुअल सर्कमस्टांस में आपको लॉस हुआ है तो आप उसके लिए कंपेंसेशन नहीं ले सकते हो। दिस थिंग इज बीन वेरी वेल एस्टैब्लिश इन द केस ऑफ, गिव मी द नेम ऑफ द केस, हैडली, ओहो क्या हो गया इसको, हैडले वर्सेस बैक्सेंडल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, हैडले वर्सेस बैक्सेंडल, ठीक है। क्या हुआ था इस केस में, कैन एनीवन रिमेम्बर? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो एक बंदा था, ठीक है, उसका बहुत बड़ा मिल था, क्रैंक शाफ्ट करके कुछ कंपोनेंट रहा होगा उसके प्लांट में, वो खराब हो गया था, तो वो उसने एक रिपेयर मैन को दिया था, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता। अब रिपेयरमैन को तो दिया था तो वो बहुत आराम आराम से कर रहा था, ठीक है, मतलब लाइक उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, वो लेके बैठा हुआ था, ठीक है, उसने उसका जो भी कंपोनेंट था उसने नहीं ठीक किया। व्हाट हैपेंड, इसी बीच में उसके पास जो आपका प्लेंटिफ था उसके पास आ गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, जस्ट ओके ओके ओके, ऑल राइट। So see, there were two parties, Hadley versus Baxender. So what happened? Hadley is the name of the owner of that, mill. Okay? Hadley was the owner of the mill, and one of the component of his plant known as crankshaft, it was damaged. So he had given that particular crankshaft to the Baxender. Baxender, he was very slow man. Okay? So he did delivered the crankshaft on time to the Hadley, and because of that late deliverance of that crankshaft, what happened? Hadley has sustained a huge loss. Okay, he has sustained a huge loss. So can you think? I mean, can you say that the Hadley can make Baxendale responsible for the huge loss which he has sustained because of lack of that crankshaft? No. Can you say because of that? Was Baxendale already aware that because of his late deliverance of crankshaft, the Hadley will suffer this kind of loss? Yes. अगर Baxendale ने crankshaft नहीं दिया टाइम से तो क्या Hadley उससे compensation करेगा, restore compensation claim करेगा? Is everyone getting the fact? Please be quick. Yes, please be quick. Then what will happen? Hadley, is Hadley eligible for the compensation or not? Yes. Direct loss. How direct loss? Baxendale, no. Baxendale wasn't aware कि वो एक that because of his non-deliverance of that crankshaft is going to make a huge loss to the Hadley. No, Baxendale wasn't told also. Baxendale, he can be eligible for the direct losses, but the loss which was occurred
which was sustained by Hardy, it wasn't that direct. It can't be, predicted by any person because he has lost, I guess, one of the contract. Okay, the new contract he was supposed to get, but because of that non-availability of crankshaft, he wasn't able to deliver it. So because of that, the Hadley wasn't able to, Hadley has basically sustained a huge amount of loss, which the Baxendale wasn't aware of. So the point over here is that from this case, we have got two kind of damages: general damages and special damages. So the court held that the parties can be held liable only for the general damages which arises in the usual course of business, but they can't be made liable for the special damages. Special damages means which are occurring in the unusual course of business. Okay, so this is what your section 73 says, that the parties can only be made to compensate only the direct loss. जो आप दूर दूर तक नहीं सोच सकते उसको आप कैसे compensate करने की बात कर रहे हैं. Okay, so the person will only be eligible to compensate this thing, direct loss, not the indirect loss, right? Now, so this is what the crux of your section 73. Then next para, compensation for the failure to discharge obligation resembling those created by contract. So this para is basically talking about compensation in case of quasi-contract. Okay? So section 73 para 2 basically talks about the compensation in case of quasi-contract. Okay? Now the explanation. Explanation is quite simple. Thoda sa, twisted language hai iska. That in estimating the loss or damage arising from breach of contract, the means which existed of remedying the inconvenience caused by the non-performance. The explanation says कि जो injured party है, that the injured party, that the injured party must make reasonable efforts to avoid the losses resulting from the breach, okay, so that his loss is kept to the minimum. This is what the explanation to section 73 says. Okay? It basically means duty to mitigate. किसकी ड्यूटी होनी चाहिए? जो प्रोमिसर, जिसको लॉस हो रहा है उसकी बात हो रही है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ सेलर, ठीक है, और वो लोग पेरिशेबल गुड से रिलेटेड दे आर डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट. बट व्हाट इज हैपनिंग कि एट द एंड मोमेंट द बायर he cancelled the contract. He said कि okay, I'm not interested to buy the perishable good. ठीक है, for example mango is there, ठीक है, he is not more, the buyer is no more interested to buy the mango. Now, at the last minute, how the seller is going to arrange it? Is he going to sit with the mango, or is he going to find the alternate solution for that? Or he is going to buy, the seller is going to watch for the other buyer so that, he could avoid the loss. So this is what your explanation says. The person who is sustaining the loss or damage, okay, his efforts will also be counted, that how much effort he has put to minimize his loss. So that will also be counted while calculating the loss or damage which is been arising out of breach of contract. Is it clear? Is it clear? What does it mean? जिस बंदे को लॉस हो रहा है उसका भी ड्यूटी बनता है कि वो अपने लॉस को मिनिमाइज करे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका आम नहीं बिका तो वो लेके बैठा हुआ है, हाय आम नहीं बिका, हाय क्या हो गया. ऑब्वियसली यार वो तो दूसरे बायर को ढूंढेगा ताकि उसका जो भी लॉस वगैरह है वो कम हो या ना हो. अगर वो नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर वो दूसरा बायर नहीं ढूंढ रहा है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं निकालने की कोशिश कर रहा है, तो भाई उसको उतना डैमेज का नहीं मिलेगा पैसा. ठीक है, सो द पर्सन शुडंट बी इग्नोरेंट इन दिस काइंड ऑफ केस. एक्सप्लेनेशन आपका ड्यूटी टू मिटिगेशन की बात करता है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. प्लीज कंफर्म. प्लीज type yes in the chat box or no in the chat box. Yes, no,
Yes. Okay, great. Now, the next section, section 74 ही शायद पूछा था recent में. Compensation for breach of contract where penalty is stipulated for. इसका तो I'm going to say कि just one para is sufficient. ठीक है. Compensation for breach of contract where penalty is stipulated for. तो basically जो आपका section 74 है section, it also talks about the compensation, and the motto of this very section is to avoid the litigation. It says that where the parties have already predetermined the compensation amount, they have predetermined the damages amount. Ki if something is going to happen, then this is the compensation amount which the parties will pay to each other. ठीक है? Either of them. So whatever amount, whatever the compensation amount has been predetermined by the parties. So the calculated compensation, it is not going to be exceeded by the actual damage or loss which has been caused to the party. ठीक है, शॉर्ट में बता रही हूँ. जो सेक्शन 74 है, जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं पार्टी, तो यहाँ पे ऑलरेडी पेनाल्टी का अमाउंट दे दिया जाता है. आप उसको पेनाल्टी बोलो, कंपेंसेशन बोलो, एनीथिंग कह लो. ठीक है. तो कंपेंसेशन अमाउंट ये लोग पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि भाई अगर यहाँ पे कुछ लॉस हुआ तो मेरे को आप 50,000 दे देना. चाहे आपसे गलती हुई तो आप मुझे 50,000 दोगे. इफ आई एम कमिटिंग द एरर देन आई एम गोइंग टू पे द 50,000. ठीक है. तो ये इन्होंने पेनाल्टी स्टिपुलेट कर ली, ऑलरेडी प्री डिसाइड कर ली है. अब आगे अगर कुछ गड़बड़ी होती है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एक्सक्यूज मी, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो आपके पास एक सोल्यूशन है कि अगर ब्रीच हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, मेरे से हो रहा है या आपसे हो रहा है, तो यू हैव गॉट द सोल्यूशन. व्हाट इज दैट? 50,000 का कंपेंसेशन. अब आपको एक्चुअल लॉस मान लो 60,000 का हो रहा है, मतलब लाइक आपको जितना भी एक्चुअल लॉस हो रहा है, तो आप ऐसा नहीं कि आप बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हो. ऑब्वियसली आपने जो 50,000 है वो आपने कुछ कैलकुलेट करके ही लिखा होगा वहां पे. ठीक है, डिसाइड किया होगा पार्टी से. तो कहने का ये मतलब है कि अगर यू नो कंपेंसेशन का जो अमाउंट ऑलरेडी स्टिपुलेटेड है, ऑलरेडी फिक्स्ड है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सीडेड बाय द एक्चुअल लॉस. तो लॉस, जो एक्चुअल लॉस या डैमेज होगा, आपको ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज करते रहोगे. जो ऑलरेडी पेनाल्टी स्टिपुलेटेड है वही आपको मिलेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा. ठीक है. और जो सेम पेनाल्टी विच इज बीन फिक्स्ड ओवर हियर बाय द पार्टीज, इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑल्टर्ड बाय द कोर्ट ऑल्सो. कोर्ट का भी यहाँ पे कोई हक नहीं बनता है. ठीक है. Section 74 basically talks about compensation for the breach of contract where the penalty is already stipulated. Penalty has been already calculated over here. Is just the actual loss or actual damage is not going to exceed which has been already stipulated. ठीक है. Section 74 आपका ये कहता है. Last is you can also go through the illustration. Last one is section 75, which talks about party rightfully rescinding contract entitled to compensation. You can read this very section together with section 39. थोड़ा सा synchronize हो जाएगा क्योंकि same illustration लिया गया है. So the party who is rightfully rescinds a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. ठीक है. So ये manager और वो singer वाला example है. If the singer is absenting herself on the 6th night and because of her absence, the manager is getting some loss, then obviously the manager, either he is going to rescind the contract, either he is going to continue with the contract. So whatever loss he is sustaining through her absence, obviously he is eligible to get that compensation. This is it. Okay. So there are only 3 sections with respect to the breach of contract in the form of compensation. All right. Section 74, Hadley versus Baxender, which talks about that the person will only be eligible for the direct loss, not indirect loss. Okay. All right. Section 74 talks about that the compensation for which the penalty has been already stipulated for, and section 75 talks about the party who are rightfully rescinding the contract, they are entitled to compensation. That's it. I hope, is it clear? I mean, is there any doubt with respect to breach of contract? Any doubt?
What? Even if the damage exceeds, see, the party have already decided the penalty. Nothing is going to supersede the penalty which has been already mentioned by the parties. कुछ सोच समझ के ही तो calculate किया होगा ना parties ने. ठीक है? So whatever it is, ये देखो, just to avoid the further litigation, that is why section 74 is going to help you, that because of over here penalty has been already calculated, so damage is not going to exceed it. ठीक है? All right. Is it clear? 74. Yes. Okay. It's been, see, while entering into a contract, there are two parties. Now, both parties are deciding, both parties are determining it. Okay, they are coming on the same page and they are fixing the penalty. All right. Yes. So it's not that only one person is deciding. No, how it can happen? Under a contract, both parties are coming. Yes, both parties are coming on the same page. Ki, if this thing is going to happen, then this is the damage. This is a penalty which the one person will pay if there is going to be a breach in future. That's it. Yeah. Just like, for example, if I am giving you a laptop, to complete your assignment, then what you are supposed to do? And I have also stated that if there is any damage to my laptop, I'm going to, I'm going to charge, or I will, I'll charge 30,000 from you if there is any damage to my laptop. So this is the penalty which we have already stipulated and you have also agreed. So you will obviously take care of my laptop, and if you're not taking care, if there is a damage to my laptop, you are going to pay me 30,000. That's it. This is all about the section 74. Acha, chalo. So this was all about the general principles with respect to contract from section 1 to section 75. ठीक है? And मैंने important sections ही highlight किए हैं जो पूछे जाते हैं generally, right? In case of any other doubt, do let me know right away. Excuse me, ma'am. Ma'am, did you teach us company law? मतलब आप वही हो ना जिन्होंने कंपनी लॉ पढ़ाया है. हाँ. मैम मुझे सिर्फ यही पूछना है कि कंपनी लॉ में क्या इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं. अरे जब स्टार्ट करूंगी तो बताऊंगी. अच्छा ठीक है. अभी यहाँ की पहले बात करो. 1 से लेके 75 तक कोई डाउट है? नहीं अभी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है? क्लियर हो गया. हाँ पहले इस पे करो. कंपनी और डेफिनेटली करूंगी, मैं ही करवाऊंगी, और वो भी सही होगा. ठीक है, टेंशन मत लो. ओके. एनी अदर, एनी अदर थिंग, एनी अदर क्वेरी? Okay, fine. See, I have already mentioned the important sections, and the sections which I have stressed especially, वो याद रखना. Like section 32 is there, section 56 is there, and there are couple of sections are there, like you have to remember. ठीक है? Because CLAT PG does also touch the basic concepts. And basic जब तक नहीं clear होगा आपका, आप advanced level के भी question आप नहीं कर पाओगे, difficulty होगी. And ये भी आपको help करेगा. ठीक है, केस लॉ से मान लो कुछ पूछ लिया, कुछ घुमा के ही पूछ लिया, तो until unless आपको ये सारे concepts आते, you will be able to solve your questions hassle free. ठीक है? चलो, anything else you want to share? Yes. Anything? Anything else? No? Chalo. Okay. Okay. Thank you so much.
and our next class will be on specific contracts. Okay, चलो, thank you so much.